to the next video of 3D geometry, which has all the HOTS question which can come in your board examination. Let's talk about the first question, children. When we talk about the first question says find the foot of perpendicular. You have to find a foot of perpendicular which is drawn from the point to a given line. Now, let's consider this point as P, O2, 0, 2, 3, and this equation of this line is also given to you, right? Which is x plus 3 by 5 equals to y minus 1 by 2 is equal to z plus 4 by 3. Now, we have to find the foot of perpendicular. Suppose this is Q. So we have to find the coordinates of Q, that is x1, y1, z1, and we also have to find the distance PQ. So this is very, very clear. How to find distance PQ is very clear. We will just use simply distance formula which we learnt in class 10th. लेकिन उसके लिए मुझे x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू प्लस z1 की वैल्यू तीनों चाहिए, तभी मेरा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उससे PQ आ पाएगा. अब हाउ विल यू गेट दिस x1, y1, z1? We have been given the equation of line, children. Can I put it equal to lambda, and can I say any point which is lying on Q, can I say x will be 5 lambda minus 3, children, if I equate this and this? If I equate this and this, can I say y will be 2 lambda plus 1, and similarly z will be 3 lambda minus 4. So these are the values, right, children? Now, if I know Q, what about, can I find, see, this is any point on the line. So any point of the line can be taken as Q. So can I say the coordinates of Q is this? Now, can I find direction ratios of PQ? आपको again direction ratios का formula आता है A, B, C. A is x2 minus x1, y2 minus y1, and z2 minus z1. So we get A as 5 lambda minus 3 minus 0. This is 2 lambda plus 1 minus 2, and this is 3 lambda minus 4 minus 3. So we got the direction ratios, right, of PQ. Now, we got the direction ratios of PQ, children, and we already know the direction ratios of line L. वो क्या है? Suppose this is A1, B1, C1. Can I take it as A2, B2, C2, children? So A2, B2, C2 is what? A2, it is 5, 2 and 3. जब x, y, z के कोफिशिएंट 1, 1, 1 होते हैं तो इनको डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है. ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. नाउ चेक, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. राइट, लाइन इज परपेंडिकुलर टू PQ. सो परपेंडिकुलर के केस में डायरेक्शन रेशियोज का रिलेशन आपको पता ही है. A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 is equal to 0. Can you get the value of lambda from here? Once you get value of lambda, put it here in this 1, right? So put in 1. So you will get the value of XYZ, that is the coordinates of Q point, which is also denoted by X1, Y1, Z1. Right, children? So XYZ or X1, Y1, Z1, and we can get the distance also in the same way the moment we get the value of X1, Y1, Z1. So that is how you have to do question number 1. Question number 2 is also similar to question number 1. अब देखिए change क्या हुआ है. Let me just erase this for you and let me just show you in the same question what has changed and how this question is going to be affected. Let's talk about question number 2, children. In the same way, suppose this is point P. Now 1, 6, 3. Find the image. Now, what do you mean by image? Image means something like this, right? The mirror, it will act as a mirror. The line will act as a mirror. So वो Q था, suppose ये Q था, हमें अब R find करना है basically. So again, any point
q के कोऑर्डिनेट्स को अगेन अगर मैं चाहूँ rather than taking x1 y1 z1 children, can I take the coordinates as x, y, and z? Any point lying on the line is x, y, z, right? So I have to, can I say, since R is the image, find the image of point 163 in the line. Again, the equation of line is given to you, right? Also write the equation of the line joining the given point. Okay, we will write the equation also and find the length of the line segment and its image. Find the length of the line segment joining the given point and its image. So length of the line segment भी find करना है. So that's not a big deal. Again check करिए. Since image है तो ये और ये distance same होंगे, यानी कि जो Q है इसमें important चीज ये है, Q is midpoint. This is the concept, extra concept which we will use. Again check करिए, इसको equal to lambda put करोगे तो again x की value यानी कि q के coordinates आ जाएंगे lambda, 2 lambda plus 1, 3 lambda plus 2. Again आप direction ratios of pq निकाल लोगे, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 and आपके कुछ direction ratios आ जाएंगे in terms of lambda, जो कि क्या आएगा, lambda minus 1, this is 2 lambda minus 1 minus 6 and this one is 3 lambda plus 2 minus 3. And again direction ratios of the line L जो कि हमें ऑलरेडी गिवन ही है. अगेन चेक करिए क्या कोफिशिएंट्स ऑफ x1 y1 z1 direction ratios of line, coefficient of x1 x y and z are 1. Yes, they are. So the direction ratios of the line is this. Again same logic, line L is perpendicular to PQ. If L is perpendicular to PQ, same logic, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0, right? From again this equation, can we get the value of lambda? Children, once we get the value of lambda, can I put it in this equation, first equation, and get the value of q? Right? Again, the logic remains same till here. जैसे ही मेरे पास q के points आ जाएंगे, can I find the, suppose this one now I've taken as x1, y1, z1 children. So can I say x1 plus 1 by 2 is equal to जो भी आपका x आया है, similarly y1 plus 6 by 2 is equal to y and similarly z1 plus 3 by 2 is equal to z. x, y और z आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे जब आपको लैम्डा मिलेगा. तो आपके पास इमेज के पॉइंट्स भी आ गए, राइट? दैट इज, एंड लाइन सेगमेंट अगेन अगर पी आर की लेंथ निकालनी है, you can very well find PR using same distance formula, x2 minus x1 का whole under root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 का whole square. All right, that was question number 2 for you. Let's talk about question number 3. Find the shortest distance between the lines. तो generally जैसे ही shortest distance लिखा होता है, बच्चे फटाफट से फॉर्मूला जो उन्होंने लर्न किया होता है वो यूज कर लेते हैं. दैट इज b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2. राइट, ये फॉर्मूला एवरीबडी नोज दिस फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार आता है. बट दिस इज नॉट द फॉर्मूला विच इज सपोज टू बी यूज्ड. व्हाई? Have a look here. Can I say these lines are parallel? Why? क्योंकि 2 by 4 इक्वल है 3 by 6 के, इक्वल है 4 by 8 के. अगर डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं इक्वल टू लैम्डा, सो दीज लाइन्स आर पैरेलल चिल्ड्रन, राइट? और पैरेलल लाइन्स के लिए जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर upon absolute value, again magnitude of this and then absolute value. So this is the formula which you have to use. Again children, it will not matter whether you have used this formula or you have used this formula, because finally magnitude निकाल रहे हो ना, तो कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है ये फॉर्मूला. सो डोंट गेट बॉदर्ड. ओके, जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना बेटा किसी क्रॉस प्रोडक्ट का,
तो क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम ऑलरेडी साइंस को नेगेट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इस वजह से कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड वन. सो दिस इज द thing which has to be done. So this is your a1 vector, this is your a2 vector, and you can take the simplest one as b vector. अब आपको a2 माइनस a1 वेक्टर निकालना आता है, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है ये कैसे निकालते हैं, राइट? So we can find it out. We can find out question number 3 using this formula. That's the catch in question number 3. Let's talk about question number 4. When we have to talk about question number 4, show that there are 4 points here. You have to show that A, B, C, D are coplanar. तो सबसे पहले कोप्लेनैरिटी के लिए या तो हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट होता है, just give me 1 minute. It is A x minus x1 plus B y minus y1 plus C z minus z1 equals to 0. Now when you have to find, पहले ये x1 y1 z1 डाल देंगे, तो a into x minus 0 plus b into y plus 1 plus c into z plus 1 equals to 0. This is your first equation. अब चेक करिए, जो प्लेन है उस पे ये वाला पॉइंट भी लाई करता है, ये वाला पॉइंट भी लाई करता है. सो पुट -4 4 4 in 1, क्योंकि वो x y z को satisfy करेगा, right children? So we will get one equation in ABC, right? If I put this, let's check, तो क्या आएगा? -4a, this is plus 5b, this is plus 5c is equal to 0. एक ये इक्वेशन आ गई. अब चेक करिए, 4 5 and 1 जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो भी उसी प्लेन में है. अगेन इन 1 पुट कर दीजिए, वो भी एक्स वाई जेड को सेटिस्फाई करेगा. तो क्या आएगा? दिस इज 4a, 5 पुट करोगे तो 5 + 1 6b, एंड अगेन 1 पुट करोगे तो 2c equals to 0. Now there are two equations with 3 variable. Can we find out using the cross multiplication method? तो a के नीचे क्या आ जाएगा? 5 5 6 2. आपको अगेन डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता ही है. माइनस बी के नीचे क्या आ जाएगा? 5 2 -4 4. सी के नीचे क्या आ जाएगा? अगेन फॉरगेट दिस कोफिशिएंट, -4 4 5 and 6. तो आपकी सबकी a अपॉन 5 2 are 10 -6 5 are 30 equals to -b upon again 5 4 are 20 plus 4 2 are 8 equals to c upon 6 4 are 24 minus 5 4 are 20 equals to lambda डाल दोगे तो आपकी a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू तीनों in terms of lambda आ जाएगी. If you put this value of a b c in this, lambda तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा. So you will get the equation of plane. अब how will you come to know कि fourth point, ये जो जब आप ये वाला d पॉइंट भी x y z के जगह पे 3 9 and 4 रखोगे तो वो इक्वेशन मतलब LHS इक्वल टू RHS आएगा, यानी कि वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट इज द plane is the fourth point is also lying on the plane. That means all the 4 points are coplanar. And equation of the plane तो आई गई जैसे ही आपने ये वैल्यू पुट करी. So this was the trick here कि जब 2 इक्वेशन होती हैं और 3 वेरिएबल होते हैं तो आप डिटर्मिनेंट यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सॉल्व करके अपना तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालोगे. राइट, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला. 2 प्लेन्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा. डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन इज d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. अगेन क्लियरली चेक कर लेना कि ये जो है ये प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि -x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है. -x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5. सो ऑब्वियसली डिस्टेंस आपका आ ही जाएगा 4 - 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ
-1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट? यू कैन फाइंड आउट. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. जैसे ही लिखा होगा लाइन एंड प्लेन, याद रखिएगा दो लाइंस के बीच का एंगल कॉस होता है, दो प्लेन के बीच का एंगल भी कॉस होता है, और लाइन और प्लेन के बीच का एंगल साइन थीटा होता है. तो दिस इज द फॉर्मूला, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एन वेक्टर. एंड ऑब्वियसली सिंस एक्यूट एंगल की बात हो रही होती है तो मॉडुलस ले लेते हैं. सो दिस इज, यू नो, लाइन के केस में दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज एन वेक्टर. सो आपको सब कुछ गिवन है, यू जस्ट हैव टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट. आपको फाइंड करना आता है, ये आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, राइट? दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू. अब क्वेश्चन नंबर 7 कैसे फाइंड करना है? अगेन क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर. अगेन कोप्लानरिटी के लिए कंडीशन a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू 0 आना चाहिए. तो वो आप देख ही सकते हो. दिस इज a1 वेक्टर, this is b1 vector डायरेक्शन वेक्टर, this is a2 वेक्टर एंड this is b2 वेक्टर. तो आप चेक कर लीजिएगा क्या क्या दिस a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 0 आ रहा है. अगर आ रहा है तो यस, लाइंस आर कोप्लेनर. अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है चिल्ड्रन, तो अगेन डायरेक्शन वेक्टर तो आपका आ ही गया, विच इज b1 क्रॉस b2, and direction vector of the plane is denoted not by b, it is denoted by n vector. एंड वो किसी भी प्लेन से पास करता है, तो यानी कि किसी भी पॉइंट से, प्लेन इससे भी पास करता है, इससे भी. सो r माइनस a1 वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है. या r वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है. सो आप किसी से भी फाइंड कर सकते हो इक्वेशन ऑफ प्लेन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? लेट्स लर्न अगेन, ड्रॉ डायग्राम. जहां पे भी कंफ्यूजन होता है ना बेटा, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए ना, कर लेना. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. ओके, एक हमें प्लेन गिवन है और एक कोई पॉइंट गिवन है. इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है टू द प्लेन, फ्रॉम द प्लेन, मेजर्ड पैरेलल टू अ लाइन. ओके, ये जो प्लेन है वो एक लाइन के पैरेलल है. डिस्टेंस जो है वो लाइन के पैरेलल है. डिस्टेंस जो है दैट इज फ्रॉम द पॉइंट दिस to the plane, equation of plane is given, x minus y plus z is equal to 5, measured parallel to the line. Equation of line is also given, right? Suppose this is P and suppose I take this as Q. Any point which is lying on the plane is this. So basically हमें find क्या करना है? Distance find करना है, यानी कि basically मुझे PQ find करना है, राइट? सो अब आप चेक करिए, कैन आई से इक्वेशन ऑफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ is x minus x1 by a, y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c. I hope this you can understand. Equation of the line क्या होती है? x minus x1 by a, y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c. जहाँ पे x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट होता है, जो कि हमें ऑलरेडी p के फॉर्म में गिवन है, एंड a b c डायरेक्शन रेशियोज होता है, जो कि इस लाइन के पैरेलल लाइन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो पैरेलल लाइन तो हमें दी थी, तो ये जो इसका क्या पैरेलल लाइन का सिग्निफिकेंस क्या था कि उससे मुझे a b और c की वैल्यू मिल गई बेटा. So can I put it equal to lambda and can I say x की वैल्यू 2 lambda plus 1, y की वैल्यू 3 lambda minus 2 और z की वैल्यू -6 lambda plus 3, ये आएगा. And can I, this is any point on the line, so can I take this point as q? Can I say the coordinates of
क्यू जो है वो मेरे पास ये आ गए, राइट? नाउ डोंट यू थिंक 2 lambda plus 1, 3 lambda minus 2 and minus 6 lambda plus 3. Now don't you think ये जो Q point के coordinates है, Q lies on the plane also, it satisfy the, it is a common point between the line and the plane, right? तो यानी कि x minus y plus z is equal to 5 को satisfy करेगा. And can I put the coordinates of Q here in this line and can I get the value of lambda? X की जगह मैं put कर दूंगी 2 lambda plus 1, y की जगह 3 lambda minus 2 and z की जगह minus 6 lambda plus 3, and I will get the value of lambda. Once I get the value of lambda, कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ क्यू? ऑब्वियसली मैं इसे वापस पुट कर दूंगी, मेरे पास क्यू आ जाएगा. और वंस मेरे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए चिल्ड्रन, सो पी क्यू मुझे फाइंड करना आता ही है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लॉजिक यूज किया था. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. Right children, that is how you will find question number 8. Now last question, which is again a very important one. Let me show you question कहता क्या है, again using a diagram because नहीं समझ आएगा. Find the distance of the point from the line measured parallel to the plane. Okay, again एक plane है, एक point से distance find करना है जो कि parallelly measure होता है to the line. Now check. Suppose this is point which is given to us. Suppose मैं इसे a ले लेती हूँ, -2 3 -4. इक्वेशन ऑफ लाइन ये l है, ये हमें गिवन है. सपोज इसको हम अगेन पॉइंट p ले लेते हैं कोई. इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे ऑलरेडी गिवन है और इक्वेशन ऑफ प्लेन भी मुझे गिवन है, जो कि है 4x प्लस 12y माइनस 3z प्लस 1 इक्वल्स टू 0. और मुझे मेजर क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन. अगेन इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब मुझे अगेन पी ए फाइंड करना है. अगेन पी ए फाइंड करने के लिए लगेगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन पहले मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे. दैट इज हाउ. सो कैन आई से इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, अगर मैं उसे अगेन वही सेम चीज करूं, अगर मैं उसे इक्वल टू लैम्डा पुट कर दूं बेटा, इफ आई पुट दिस इक्वेशन एज लैम्डा, कैन आई से जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 लैम्डा माइनस 2 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4 लैम्डा माइनस 3/2 y की वैल्यू एंड z की वैल्यू 5 lambda minus 4/3. This is the coordinates of p which I am getting, right? Now, after getting the coordinates of p, if this is not a standard form of line, so can I say x by 2/3 is equal to y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया. अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे नीचे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. सिमिलरली मैंने z का कोफिशिएंट 1 कन्वर्ट करने के लिए मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे नीचे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो कैन आई से जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ऑफ लाइन L इज व्हाट? It is direction ratios are, अच्छा इसके डायरेक्शन रेशियो, ये तो हो गई एक. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L नहीं चाहिए, ऑफ हमें PQ चाहिए, PA चाहिए. कैन आई फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PA? अगेन सेम फॉर्मूला ABC, x2 minus x1, y2 minus y1 and this is z2 minus z1. This is your सपोज x1 y1 z1 एंड ये पॉइंट अगर x2 y2 z2 है तो हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस 2, राइट? ये आ जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा माइनस 3/2 माइनस 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 5/3 लैम्डा माइनस 4/3 प्लस 4.
ये मेरे पास आ गया ए बी सी, या मैं इसे A1 B1 C1 ले लेती हूँ. नाउ चेक हियर चिल्ड्रन, प्लेन की इक्वेशन भी मुझे गिवन थी. प्लेन की इक्वेशन क्या थी? 4x प्लस 12y माइनस 3z इज इक्वल टू -1. अब आपको पता है मैं इक्वल टू -1 नहीं लिख सकती, तो मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा. -4x माइनस 12y plus 3z is equal to 1. So can I say direction ratios of plane यानी कि A2, B2, C2 is -4, -12 and 3. और प्लेन की जो डायरेक्शन है, अगेन आपको याद होगा, इफ लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, प्लेन की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होती है, राइट? सो अगर प्लेन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ये प्लेन की डायरेक्शन है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो लाइन की डायरेक्शन पैरेलल होती है टू द गिवन लाइन, तो ये लाइन की डायरेक्शन है, तो ये तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. तो अगर दो डायरेक्शन रेशियोज आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, अगेन लॉजिक याद है, A1 A2 प्लस B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. Again, this is your A1 B1 C1, this is your A2 B2 C2 equal to 0 डाल दोगे और आपके पास lambda की वैल्यू आ जाएगी. Once you will get lambda, you will get the coordinates of P, and once you get P, तो PA तो clearly डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल ही जाएगा. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. So these were all the HOTS questions of 3D geometry. But still, if you have any doubt related to your CBSE syllabus, please mention in the comment below. I'll definitely reply. Thank you.